Now I will continue with the bounded convergence theorem. So we have given the two conditions that the sequence of measurable function fn is bounded and the sequence of measurable function is pointwise convergent. Then what we want to prove that the integral of f is equal to limit n tends to infinity integral of fn. कि अगर हमें हमारे पास सीक्वेंस ऑफ fn पड़ा हुआ है, अगर हम उसका इंटेग्रल लेके लिमिट निकाल दें तो वो इंटेग्रल ऑफ f के ही इक्वल आएगा. So according to the conditions that we have given, since fn is a bounded measurable function and f is equal to limit n tends to infinity fn, and we have the one of the property that कि अगर fn bounded measurable function है तो उसकी limit भी क्या होगी, f is the limit of fn, then that is also bounded and measurable, and every bounded and measurable function is Lebesgue integrable. Now we will apply the theorem that if fn is a sequence of measurable functions defined in a set of finite measure and limit of fn is equal to f, then for epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0, there exists a measurable set A contained in E with measure of A is less than delta and a positive integer capital N such that as fn is tending to f, it implies mod of fnx minus f of x is less than epsilon. अब ये नीचे 2 times measure of E इसलिए है, कहीं ना कहीं जाके ये कैंसिल हो जाएगा. For all n greater than or equal to n and for all x belongs to A. यानी fn f को कन्वर्ज कर रहा है उन डोमेन के पॉइंट्स के लिए जो E माइनस A में आ रहा है. That is, we have this figure. This is a function fnx. So e जो है this, अब e को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक इसमें से जो a है, it is the set of all those points for which the measure of a is less than delta. And if you will take the limit x to, if you will take the function value of fnx, here fnx is tending to f of x. It means mod of fnx minus f of x is less than epsilon. For all n greater than or equal to n and for all x belongs to E minus A. तो fn x f को टेंड कर रहा है उन पॉइंट्स के लिए जो E माइनस A में आ रहे हैं. तो जो नहीं आ रहे हैं वहां पे, यानी कहाँ पे x belongs to A, A में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं वहां पे fn f को टेंड नहीं कर रहा है. दैट्स व्हाई उस सेट का मेजर क्या है, लेस देन डेल्टा. So now the second step is, as we have given fn is bounded, so therefore mod of fn is less than or equal to m. अगर fn bounded है तो f भी क्या होगा, bounded होगा. So then consider mod of fnx minus f of x. यहाँ पे mod of a minus b की प्रॉपर्टी लगा दी, mod of a plus mod of b. अब चाहे fn है चाहे ff, दोनों क्या है, बाउंडेड है. they are bounded by m plus m is 2m for all x belongs to. तो यहाँ से रिजल्ट आ गया mod of fnx minus f of x is less than or equal to 2. Now what we want to prove, हमने दो चीजों को equal prove करना है. What we want to find, we want to find integral of f is equal to limit n tends to infinity integral of f. तो ये क्वांटिटीज हैं जिनको इक्वल प्रूव करना है. मैथमेटिक्स में जब भी दो क्वांटिटीज को इक्वल प्रूव करना है, उसका डिफरेंस का मॉड जो है हम इक्वल लेके, इक्वल टू 0 अगर प्रूव करते हैं तो यहाँ भी हम इनको कंसीडर करके चलेंगे. वी विल कंसीडर दिस क्वांटिटी, राइट. सो ये देखो यही कंसीडर किया है. आइदर यू कैन टेक एफ इन पहले या एफ एन, इट डजंट मैटर, ठीक है. सो वी हैव टेकन इंटीग्रल ऑफ एफ एन ओवर ई माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ. अब मॉड है, प्रॉपर्टी क्या होती है, अब पहले इनको इकट्ठा कर लिया एफ एन माइनस एफ, जब मॉड अंदर जाएगा देन ये लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. अब ई दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज ई माइनस है, द अदर इज ए, ठीक है. अगर इंटरवल ए टू बी है तो उसको डिवाइड कर सकते हैं ए टू सी एंड सी टू बी. तो ई माइनस ए पे एफ एन माइनस एफ की वैल्यू क्या है, ये देखिए पीछे से, दिस वन, ये वाली वैल्यू. Either you can write this fn minus f or you can write it as fnx minus f of x. This is less than epsilon by 2 times measure of e. तो यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, epsilon upon 2 times measure of e.
एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंड मॉड ऑफ एफ एन माइनस एफ। बेटा फंक्शन पूरे पे बाउंडेड है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू लगा देंगे, 2m लगा देंगे। I have already told you E is the union of A and E minus A and both are disjoint. So कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आने के बाद आप इसको इंटेग्रेट करेंगे। इंटेग्रेशन, दिस इज द Lebesgue इंटेग्रल ऑफ ऑन अ मेजरेबल सेट। उसका फॉर्मूला क्या है, इसका मेजर ऑफ E माइनस ए आ जाएगा। इट इज डिफाइंड ओवर द सेट A, तो इसका मेजर ऑफ ए आ जाएगा। Then after calculation for all n greater than or equal to n चलता जाएगा। So after, अब ये कैलकुलेशन में आंसर एप्सिलॉन फाइनल बन रहा है। आप देखिए मेजर ऑफ E माइनस ए को कैलकुलेट करेंगे। मेजर ऑफ E माइनस ए इज डेफिनेटली लेस देन और इक्वल टू मेजर ऑफ E। क्यों? क्योंकि E जो है वो यूनियन है, वो बड़ा है, E माइनस ए उसका सबसेट है। सो दोनों की जो डिवीजन है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब इस पूरी क्वांटिटी की जगह रह गया लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2। दिस विल गॉट कैंसल, so we are left with only epsilon. So therefore the mod of this is less than epsilon for all n greater than or equal to n. What we have proved? We have proved that integral of fn minus integral of f, its mod, it is less than epsilon for all n greater than or equal। जैसे जैसे n बढ़ता जाता है इन दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होता है। इट इंप्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रल ऑफ fn इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस वी वांट टू प्रूव, राइट। So therefore limit n tends to infinity integral of fn is equal to integral of f. So now the corollary is there. Let fn be a sequence of measurable functions defined on a set E of finite measure, and if m is greater than 0 such that fn is bounded for all x belongs to A and fn is tending to f of x almost everywhere on E, then prove that the same result. अब इसमें almost everywhere बोला, it means we will make the two sets E1 where fn is equal to f and E2 is a set where fn is not equal to f, so that E is E1 union E2 and E1 intersection E2 is equal to 5. अब clearly जब कह दिया fn f को almost everywhere tend करता है, इसका मतलब जहां पे fn f के बराबर नहीं है उस सेट का मेजर क्या है, 0. That's why measure of E2 is equal to 0. Now what we want to integrate, what we want to find, integral of fn. So इसको फिर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, E1 यूनियन E2 सेपरेट कर दिया, ठीक है, और E2 के ऊपर इंटेग्रल की वैल्यू क्या है, 0। E2 बेटा E2 सेट क्या है, 0 आ रहा है। जब आप इसको इवेल्युएट करोगे तो ये मेजर ऑफ E2 में बदल जाएगा। मेजर ऑफ E2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इज 0. So you are left with limit of fn depends upon limit of fn over the set E1. राइट। सो अब ये लिमिट जो है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रल ऑफ दिस बाय अबव थ्योरम। अब अबव थ्योरम से ये जो लिमिट है वो अंदर चली जाएगी, ठीक है, और ये किसके बराबर है, लिमिट ऑफ fn वी हैव गिवन दिस इज इक्वल टू f। सो देयरफॉर दिस इज इंटीग्रल ऑफ f ओवर द सेट E1 प्लस इंटीग्रल ऑफ सेट ओवर द सेट E2, ठीक है। अगर नहीं है, देखो एक सेट नहीं था, वो क्या था, 0, तो हम इसमें एज इट इज इसको लगा सकते हैं। ऐसे था इंटीग्रल ऑफ f E1, so this is equal to integral of f over the set E1 plus integral of f over the set E2। फर्क नहीं पड़ेगा, जब ये इवेल्युएट होगा तो जो भी आएगा इनटू मेजर ऑफ E2 लगेगा, ठीक है। मान लो f की जगह पे सपोज करो 1 है, तो ये 1 इंटू मेजर ऑफ E2, आंसर तो बेटा 0 ही आना है क्योंकि मेजर ऑफ E2 क्या है, 0। सो देयरफॉर ये क्या बन गया, इन दोनों को इकट्ठा कर लो, ये बन गया E1 यूनियन E2 इंटीग्रल ऑफ f ओवर द सेट E। सो दिस वी वांट टू प्रूव, यहीं से शुरू किया था हमने, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रल ऑफ fn ओवर द सेट E, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f ओवर द सेट E। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस